Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. This is Hamid Hussain, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Dear students, it's our lecture number 2 on unit number 17. What you do is what you are. In the first lecture, we read the first half of this article, and in this first half, we came to know that the writer of this article, she is making a comparison of the American mindset, American society, the mindset of the American society with the rest of the societies of the world. In America, most of the people, they have the tendency to define the people in terms of their jobs against which they are paid. So in the first half, we read this very tendency of the people of America, with how they judge and define the people. In the first half, the writer makes a comparison of American society with the people in the rest of the societies of the world, that what are the tendency of the American people to define or identify the people. They define or identify the people in terms of the job they have. And in this regard, she gives certain example too, and in the further paragraphs, she makes classification of such people. So let's read the second half of this article along with translation. In this second half, she suggests that we should have a society without the consciousness of classes. We should have, she suggests that we should have a classless society. It seems that she is advocating the social philosophy of communism. Let's read the second half. We are supposed to be a classless society, but we are not. यहाँ पे राइटर अपनी एक विश का इजहार कर रही हैं आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ द पीपल ऑफ जजिंग देम इन टर्म ऑफ द जॉब दे हैव. राइटर कहती हैं कि हमें एक क्लासलेस सोसाइटी हमारे पास होनी चाहिए. मुआशरा जो है वो तबकात से बालातर होना चाहिए, और साथ वो एक हकीकत का इजहार भी कर रही हैं कि लेकिन हमारे यहाँ मुआशरे में तबकात हैं. We don't recognize a title nobility. हम टाइटल नोबिलिटी को नहीं मानते. अगर कोई ज़ाती तौर पर या ख़ानदानी तौर पर अगर नोबल है तो हम उस नोबिलिटी को नहीं मानते unless until the people we define or we judge they have jobs. Until they have good jobs, we don't recognize their title nobility. We refuse to acknowledge dynastic privilege. हम जो नस्ल दर नस्ल, जो आप कह सकते हैं ख़ानदानी जो privileges जो मुंतकिल होते हैं, हम उनको भी acknowledge नहीं करते. But we certainly separate the valued from valueless. हम valued को valueless से हम अलहदा करते हैं. And it has a lot to do with the job and importance or prestige we attach to them. और इस valued और valueless की जो बुनियाद है, जो तफरीक है, वो जॉब की बुनियाद पर है. और ये अहमियत और वकार हम जॉब की बुनियाद पर देते हैं. अगर किसी को हम माशरे के अंदर वैल्यूड समझते हैं या किसी को अगर वैल्यूलेस समझते हैं, तो उसकी बुनियाद उस जॉब की अहमियत है
जिस जॉब से वो शख्स मुंसलिक है, या उस जॉब का वकार है जो वो शख्स कर रहा होता है. इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग वेदर एनी ऑफ दिस इज करेक्ट और प्रॉपर. अब यहाँ पे राइटर जो है वो गैर ज़रूरी किसी बहस का वो हिस्सा नहीं बनना चाह रही. कहती हैं कि इस बात के ऊपर बहस करना वो मुनासिब नहीं है. इट इज़ नो यूज़. इसका फ़ायदा नहीं है कि क्या किसी को माशरे के अंदर किसी को वैल्यूड कहना या किसी को वैल्यूलेस करार देना उस जॉब की बुनियाद पे जो वो शख्स करता है, इसकी जो है अहमियत, और इस अहमियत, जॉब की अहमियत की बुनियाद पर एक सेग्रीगेशन या एक लाइन ऑफ डिमार्केशन ड्रॉ करना और इस पे बहस करना जो है वो यूजलेस है. रैशनली इट इज सिली. लेकिन वो यहाँ एक बात को एडमिट भी कर रही है, लेकिन रैशनली जो है, लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये काम क्या है, बेवकूफ़ाना है, सिली है. कि किसी भी जॉब की नौइयत पर, किसी जॉब की अहमियत की बुनियाद पर, जबकि वो अहमियत भी हम खुद जो है हमारी नज़र में है, ठीक है, तो किसी जॉब की बुनियाद पर किसी शख्स को जो है कदर वाला या किसी को बेकदरे कहना या वैल्यूलेस कहना, ये सिली है अकॉर्डिंग टू द राइटर. दैट्स आवर सिस्टम however, and we should not only keep it in mind, we should teach our children how it works. और ये जो है, जो सिस्टम है कि जॉब की बुनियाद पर हम एक लाइन ऑफ डिमार्केशन ड्रॉ करते हैं कि ये कदर वाले लोग हैं, वैल्यूड लोग हैं, बावकार लोग हैं, ये इज़्ज़तदार लोग हैं, और ये इज़्ज़त वाले नहीं हैं या ये वकार वाले लोग नहीं हैं. ये हम किस बुनियाद पर डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब. और यही राइटर कहती हैं, यही हमारा सिस्टम है, और हमारा सिस्टम इसी तरह ही काम करता है. जॉब की बुनियाद पर या जिस जॉब की जो है खातिर या जिस जॉब के इवज़ जो सिला दिया जाता है, जो मुआवजा दिया जाता है, उसी मुआवजे की बुनियाद पर हम किसी शख्स के मयार का, ज़िंदगी के मयार का हम तायुन करते हैं. और यही हमारा सिस्टम है. एंड वी शुड कीप इन आवर माइंड एज वेल. और इस चीज़ को, इस हकीकत को हमें मलहूज़ खातिर भी रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए. एंड वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन हाउ इट वर्क्स. और साथ इस हकीकत से हमें अपने बच्चों को भी आगाह कर देना चाहिए कि माशरे के अंदर, इस तबकाती निज़ाम के अंदर ये सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे लोगों को माशरे की नज़र में अहमियत मिल जाती है और किन लोगों को माशरा जो है वो वकार से, इज़्ज़त से, एहतराम से महरूम रखता है. तो ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम की वर्किंग के हवाले से हमें अपने बच्चों को भी आगाह कर देना चाहिए. It is perfectly well to want to grow to be a cowboy or a nurse. यानी जॉब की वजात खुद अगर देखा जाए तो किसी भी काम की अहमियत कम नहीं होती. जब एक काम की ज़रूरत है माशरे के अंदर तो यकीनन उस काम की अहमियत भी है. तो यहाँ राइटर कहती हैं कि इट इज़ परफेक्टली वेल, ये बिल्कुल दुरुस्त है, टू वॉन्ट टू ग्रो टू बी अ काउबॉय और अ नर्स. अगर कोई काउबॉय बनना चाहता है, ठीक है, a person wants to take care of the animals, cattle, cowboy वो बनना चाहता है या नर्स बनना चाहता है, ठीक है, अपनी चॉइस पे, अपनी एम्बिशन के मुताबिक किसी पेशे का भी अगर कोई शख्स जो है किसी पेशे का इंतखाब करना चाहता है, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली वेल. Kids should know, however, that quite apart from earning potential, the cattle breeder is much more respected than the higher hand. लेकिन कते नज़र इसके कि एक शख्स में जो है अर्निंग पोटेंशियल कितना है, यानी कितना वो कमा सकता है और कमाने की जो है वो पोटेंशियल कितना रखता है, इससे हट के द कैटल ब्रीडर इज मच मोर रिस्पेक्टेड देन द हायर हैंड. एक कैटल ब्रीडर जो है, एक आप कह सकते हैं गल्लाबान, जानवर पालने वाला जो है, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत उस शख्स के जो उजरत पे काम करता है, जो मजदूरी करता है, यानी जिसको अपने काम की बुनियाद पर या उस मजदूरी
के एवज जो है उसको मजदूरी मिल जाती है, उजरत मिल जाती है, उस हायर हैंड से या हायरिंग हैंड से एक कैटल ब्रीडर को माशरे में अहमियत दी जाती है। द डॉक्टर गेट्स अ लॉट मोर रिस्पेक्ट एंड प्रिविलेज देन द नर्स। अगरचे दोनों का काम जो है वो मिलता जुलता है, एक नर्स भी जो है उसका काम नर्सिंग है और साथ एक डॉक्टर का काम भी इलाज मुआलजा है, लेकिन सिर्फ उजरत की बुनियाद पर, मुआवजे की बुनियाद पर और उस वकार की बुनियाद पर जो एक डॉक्टर को हासिल है, नर्स को ये वकार, ये इज्जत, ये प्रिविलेज हासिल नहीं है। आई थिंक सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on job we hold। यहाँ पे ख़ास तौर पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को राइटर एक सजेशन देती हैं। शी इज़ पुटिंग फॉरवर्ड अ प्रपोजल, अ सजेशन पर्टिकुलरली टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो ख़ास तौर पे इंसानों की डेवलपमेंट के ऊपर, एवोल्यूशन के ऊपर जो काम करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उनको एक ख़ास मशवरा राइटर दे रही हैं कि उनको चाहिए कि ये जो अनकैटलॉग सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट है, मुआशरे के अंदर इज़्ज़त, एहतराम, वकार देने का जो एक अनकैटलॉग, आप कह सकते हैं अनलिस्टेड जो निज़ाम है, इसको दोबारा से उनको स्टडी करना चाहिए इसके ऊपर कि विच पीपल शुड बी गिवन रिस्पेक्ट एंड डेफरेंस एंड विच पीपल डोंट deserve such kind of you can say privileges or respect। तो यहाँ राइटर जो है इस ज़रूरत का इजहार यहाँ पे कर रही हैं, इस कमी का वो इजहार कर रही हैं कि एक इस अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट वाले इस सिस्टम के अंदर, कि किसी सिस्टम के तहत किसी को इज़्ज़त दी जाती है और किसी को इज़्ज़त से महरूम जो है रखा जाता है। तो यहाँ पर वो इस कमी का वो इजहार कर रही हैं कि एक सिस्टम जो है, ख़ास तौर पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इसके हवाले से दोबारा से स्टडी करना चाहिए कि विच पीपल शुड बी गिवन मोर रिस्पेक्ट एंड डेफरेंस। वेयर डज अ वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट प्लानिंग फिट इन? इज दैट बेटर देन वाइस प्रेसिडेंट सेल्स इन पब्लिक कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस? यहाँ एक वो क्वेश्चन भी पुट करती हैं जस्ट टू वैलिडेट दिस वेरी पॉइंट कि ख़ास तौर पे इस अनकैटलॉग सिस्टम को दोबारा से री स्टडी करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को। तो यहाँ पे वो एक सवाल करती हैं कि एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रोडक्ट प्लानिंग में कैसे फिट आ सकता है, कैसे वो एडजस्ट हो सकता है, और इज़ दैट बेटर देन वाइस प्रेसिडेंट सेल्स इन पब्लिक कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस? यानी जो टाइटल है वाइस प्रेसिडेंट का, जैसे हमने फर्स्ट हाफ में भी पढ़ा कि एक जो जस्ट कैटेगरी के लोग हैं उनको इसके बावजूद कि वो कमाते हैं, इसके बावजूद वो किसी काम का, किसी जॉब का हिस्सा है, लेकिन उनको जस्ट कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि जस्ट अ हाउस वाइफ, जस्ट अ किड, जस्ट अ बम, ठीक है, ये सिर्फ, और जो नॉन अर्निंग अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको भी जस्ट कैटेगरी में पुट करते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ जो है एक स्टूडेंट है, सिर्फ एक बम है, सिर्फ एक गेट कीपर है। तो इन देयर आर नंबर ऑफ सच जॉब्स, सच पीपल हु कैन बी एनलिस्टेड इन दिस लिस्ट टू। तो लेकिन इसके बरक्स एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये टाइटल नहीं यूज होता। ये नहीं कहा जाता कि ही इज जस्ट अ वाइस प्रेसिडेंट, यानी उसकी जो जॉब का टाइटल है वो चलता है। तो यहाँ पे अगरचे जो प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट का मेरे ख्याल में रोल इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है, या वो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल नहीं है उस डिपार्टमेंट में। इवन देन उसका नाम जो है वो इंसान के शऊर और लाशऊर में वो बिकता है। यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो टाइटल है वो जो है रन करता है into the consciousness and unconsciousness of the people। इसी तरह एक और एग्जाम्पल राइटर यहां पे देती हैं, that is writers earn diddly dot but I suspect they are held in higher esteem than wealthy rock musician। यानी जो लिखने वाले लिखारी हैं, राइटर्स हैं,
वो बहुत कम कमाता है, डिडली डॉट, थोड़ा बहुत, मीगर यू कैन से अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा थोड़ा करके वो कमाता है, लिखता है और अपनी जो भी राइटिंग है उसका मुआवजा, उसकी जो भी रॉयल्टी है वो थोड़ा थोड़ा वो कमाता है। लेकिन राइटर कहती हैं कि बट आई सस्पेक्ट दे आर हेल्ड इन हायर एस्टीम देन वेल्दी रॉक म्यूजिशियन। लेकिन अमीर दौलतमंद जो रॉक म्यूजिशियंस हैं उनको शायद राइटर की अहमियत या राइटर की तरह की इज्जत उनको नहीं दी जाती। ये अगरचे ये थोड़ा सा पॉइंट जो है, जो पॉइंट हम पहले पढ़ते आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगरचे कमाता रॉक म्यूजिशियन ज़्यादा है, वो अमीर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो है जो अमारत से उसकी दौलतमंदी की वजह से उसको इज्जत नहीं दी जाती, लेकिन इज्जत जस्ट बिकॉज ऑफ द नोबल प्रोफेशन ऑफ द राइटर उसको इज्जत दी जाती है। वजह यही है जैसे हमारे जैसे माशरे के अंदर भी आर्टिस्ट को वो अहमियत या वो इज्जत हासिल नहीं है। हम वैसे तो सिंगर्स को हम सुनते हैं, लेकिन इवन देन हमारे जो है जहनों के एक उफुक पे उनके लिए एक राय ये भी है कि वट एवर दे आर डूइंग दैट्स नॉट गुड। हम उनको सुनते भी हैं, हम इंटरटेन भी होते हैं उनकी परफॉर्मेंस से, लेकिन इवन देन वी डोंट रिकग्नाइज देम। उनका रोल जो है एज एन आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिशियन हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो वंस अगेन इट कैन बी अ टेंडेंसी देयर इन अमेरिका टू। That is, if everybody older than 40 gets to vote. Here is a comparison of these two kinds of job of a writer and a musician. Let's move to the last paragraph. Last paragraph. In the last paragraph, just to emphasize, rather stress on the point or the need to study this uncatalogued system of awarding respect, the writer is putting forward some questions before the people. यानी ये हमें सोचने पे मजबूर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस राइटर जो है वो हमारे सामने रख रही हैं, इस ज़रूरत के इजहार के लिए, ये बताने के लिए कि इस निज़ाम को रीड, री ऑब्ज़र्व, री स्टडी करने की ज़रूरत है कि किन लोगों को हमें माशरे में अहमियत दी जानी चाहिए और किन लोगों को जो है किन कामों की अहमियत कम है। तो इस सिस्टम को दोबारा से स्टडी करने की ज़रूरत है। सो शी पुट्स फॉरवर्ड सम क्वेश्चंस। हाउ डू वी डिसाइड विच जॉब्स हैव ग्रेट वैल्यू एंड देयरफॉर द जॉब होल्डर्स आर वंडरफुल पीपल? ये क्या चीज़ है जिसके बुनियाद पे हम ये फैसला करते हैं कि कौन सी जॉब वो अहमियत वाली है, एंड देयरफॉर द जॉब होल्डर्स आर वंडरफुल पीपल। और अगर वो किसी भी मयार के मुताबिक, किसी बुनियाद पे अगर वो जॉब वैल्यूड अगर जॉब हैं, तो कैसे वो जॉब करने वाले जो है वो शानदार लोग हैं, वो वंडरफुल पीपल हैं? ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? व्हाट इज़ द सिस्टम, व्हाट इज़ द रूल, व्हाट इज़ द बेस? क्या बुनियाद है, क्या मयार है, क्या कसौटी है जिसकी बुनियाद पर हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये जॉब करने वाले कदर वाले लोग हैं, अहमियत वाले लोग हैं और ये वंडरफुल पीपल है? Why is someone who builds shopping center called entrepreneur while someone who builds freeways is called contractor? यानी ये क्या बुनियाद है, क्यों हम शाहराह बनाने वाले को कॉन्ट्रैक्टर और एक बिजनेस सेटअप करने वाले को हम एंटरप्रेन्योर जैसे नोबल वर्ड से हम बुलाते हैं? तो इट इज जस्ट द डिफरेंस वी आर मेकिंग, दिस इज द प्रेफरेंस वी आर गिविंग टू द पीपल, कि काम की अहमियत की बुनियाद पर ही यकीनन हम ये आदाब वाले अल्फाज या बड़े आप कह सकते हैं इज़्ज़त वकार वाले अल्फाज हम यूज़ करते हैं उस शख्स के लिए जो अपना कारोबार जो है वो सेटअप करता है। लेकिन जो शाहराह बनाता है, जो बड़ी बड़ी सड़कें बनाता है, उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्टर का वर्ड यूज़ करते हैं। एंड वंस अगेन शी इज आस्किंग क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द स्टैंडर्ड, व्हाट इज द रूल बिहाइंड?
आई हैव नो आंसर टू एनी ऑफ दिस। यहाँ राइटर यही कह रही है कि मेरे पास तो कम अज कम इन सवालों का जवाब नहीं है। वो शायद मुआशरे में ये जवाब वो देखना चाहती हैं, मुआशरे में इस सिस्टम को जो है बदलना चाहती हैं। तो दैट्स व्हाई शी सेज कि आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर ऑफ this question. But we might think about the phenomenon the next time we are tempted to fawn over some stranger because we find out he happened to be a judge. लेकिन साथ वो इनडायरेक्टली जवाब भी दे रही हैं। पहले तो वो कह रही हैं कि मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं है, साथ वो आगे कह रही हैं कि बट वी माइट थिंक अबाउट द फेनोमेनन, लेकिन हम इस फेनोमेनन को, इस इवेंट को देख के शायद हमें इसका जवाब मिल जाए। द नेक्स्ट टाइम वी आर टेम्प्टेड टू फॉन ओवर सम स्ट्रेंजर, जब हम किसी अजनबी की जो है खुशामद करना, उसकी बेजा ज़रूरत से ज़्यादा जब तारीफ़ करना शुरू हम करते हैं, इसके बावजूद कि जिसकी तारीफ़ की जा रही है वो हमारा जानने वाला नहीं है, इवन देन वी स्टार्ट टू फॉन, वी स्टार्ट टू फ्लैटर, वी स्टार्ट टू अप्रिशिएट, वी स्टार्ट टू प्रेज देम। And what is the reason behind? What the reason comes ahead? That is, we find out he happened to be a judge. ये इसलिए हम करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि अगला जो है वो जज है। जब हमें पता चलता है कि अजनबी जो है, स्ट्रेंजर एक जज है, तो हम ना जानने के बावजूद, हमारे लिए वो स्ट्रेंजर होने के बावजूद, हम उसकी गैर ज़रूरी तौर पे तारीफों के पुल हम बांधना शुरू करते हैं। Or next time we catch ourselves discount the personal worth of the garbage collector. और फिर अगर हमें पता चल जाता है अगला गार्बेज कलेक्टर है, ठीक है, कूड़ा उठाने वाला है, सफाई वाला है, तो इसके बावजूद कि वो हमारा जानने वाला हो सकता है, लेकिन हम उसको डिस्काउंट करते हैं, हम उसको अहमियत नहीं देते, हम उसको बेकदरा समझते हैं, इसके बावजूद कि वो हमारा जानने वाला है। लेकिन अगर कहीं पे इत्तेफाक से अजनबी जो कि हमारा जानने वाला नहीं है, लेकिन हमें जब पता चल जाता है कि अगला जज है, तो हम तारीफ़ें बेजा खुशामद हम करना शुरू करते हैं। सो इनडायरेक्टली शी आंसर्स हियर, ये कहने के बावजूद कि इन सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास, वो साथ इस तलख हकीकत का वो आखिर में बिलवासा तौर पे वो इजहार भी कर रही हैं कि इस वजह से है कि बिकॉज वी डिसाइड, वी जज द पीपल just because of the job they have and the work they do. So it was the article written by McVitter. So we came to the end of this lecture. Hopefully the reading, translation and explanation will help you a lot in understanding of the text. And in our next lecture we will be discussing the words, the vocabulary used by the writer here along with their meanings and explanation. So that's all. Take care. Allah Hafiz.